कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Hare Krishna. So today we are reading from second canto, chapter 5, text number 30. वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दशा दिग्वातार्क प्रचेतोष्वी वहीन्द्रोपेन्द्र मित्रकाः. What translation? Vaikarikat, the mode of goodness. Manah, the mind. Jagge, generated. Deva, demigods. Vaikarikaha, in the mode of goodness. Thus, 10. Dik, controller of direction. Vat, the controller of air. Ark, the sun god. Prasheta, Varuna, Ashwi, the Ashwini Kumaras. Vahni, the fire god. Indra, the king of heaven. Upendra, the deity in heaven. Mitra, one of the 12 Adityas. Ka, Prajapati, Brahma. Translation. From the mode of goodness, the mind is generated and becomes manifest, as also the 10 demigods controlling the bodily movements. Such demigods are known as the controller of the directions, controller of the air, the sun god, Varuna, the Ashwini Kumaras, the fire god, the king of heaven, worshipable deity in heaven, chief of the Adityas, and Brahmaji, the Prajapati, all come into existence. Purport. It's a long purport. So, Shamsundabu, should I read the complete purport, then I should explain, or I should go through explaining? Hare Krishna, Prabhu, it is completely upon you. Like purport is long, so how you want to take the class, it is completely your choice, Prabhu. It's okay, so better to read what Srila Prabhupada has told, then up to you. We are okay with both things. Okay. What is comfortable for you and okay. Vaikarika is the neutral stage of creation, and Tejas is the initiative of creation, while Tamas is the full display of material creation under the spell of the darkness of ignorance. Manufacture of the necessities of life, the factories and workshops, excessively prominent in the age of Kali or the age of the machine, is the summit stage of quality of darkness. Such manufacture enterprises by human society are in the mode of darkness, because factually there is no necessity for the commodities manufactured. Human society primarily requires food for subsistence, shelter for sleeping, defense for protection, and commodities for satisfaction of the senses. The senses are the practical science of life. As will be explained in the next verse, human civilization is meant for purifying the senses, and objects of the sense satisfaction should be supplied as much as absolutely required, but not for aggravating artificial sensory needs. Food, shelter, defense, and sense gratification are all need in material existence. Otherwise, in its pure uncontaminated stage of original life, the living entity has no such needs. The needs are therefore artificial. And in the pure stage of life, there are no such needs. As such, increasing the artificial needs as in the standard of material cultivation or advancing the economic development of human society is a sort of engagement in darkness without knowledge. By such engagement, human energy is destroyed.
Because human energy is primarily meant for purifying the senses in order to engage them in satisfying the senses of the Supreme Lord. The Supreme Lord being the supreme possessor of the spiritual senses is the master of the senses, Rishikesha. Rishikesh means Rishik means the senses, and Ish means the master. The Lord is not the servant of the senses, or in other words, he is not directed by the dictation of the senses, but the conditioned soul or the individual living entity are servants of the senses. They are conducted by the direction or dictation of the senses. And therefore, material civilization is kind of engagement in sense gratification only. The standard of human civilization should be to cure the disease of sense gratification, and one can do this simply by becoming an agent of satisfying the spiritual senses of the Lord. The senses are never to be stopped in their engagements, but one should purify them by engaging them the pure service of sense gratification of the master of the senses. This is instruction. The whole Bhagavad Gita, Arjuna wanted first of all to satisfy his own senses by his decision not to fight with his kinsmen friends. But Lord Sri Krishna taught him the Bhagavad Gita just to purify Arjuna's decision for sense gratification. Therefore, Arjuna agreed to satisfy the senses of the Lord, and thus he fought the battle of Kurukshetra as the Lord desired. The Vedas instruct us to get out of existence of darkness and go forward on the path of light. Tamasi ma jyotirgama. The path of light is therefore to satisfy the senses of the Lord. Misguided men or less intelligent men follow the path of self-realization without any attempt to satisfy the transcendental senses the Lord by following the path shown by Arjuna and other devotees of the Lord. On the contrary, they artificially try to stop the activities of the senses. The law activity of the senses, the yoga system, or they deny the transcendental sense of the Lord, the jnana system. The devotees, however, are above the yogis and the jnanis because pure devotees do not deny the senses of the Lord. They want to satisfy the senses of the Lord. Only because of the darkness of ignorance do the yogis and jnanis deny the senses of the Lord and thus artificially try to control the activities of the deceased senses. The deceased condition of the senses, there is too much engagement of the senses in increasing material needs. When one comes to see the disadvantage of aggravating the senses, the sense activities, one is called a jnani, and when one tries to stop the activities of the senses by the practice of yogic principles, he is called yogi. But when one is fully aware of the transcendental sense of the Lord and tries to satisfy his senses, one is called a devotee of the Lord. The devotees, the Lord, do not try to deny the senses of the Lord, nor do they artificially stop the action of the senses, but they do voluntarily engage their purified senses in the service of the master of the senses, as was done by Arjuna, thereby easily attaining the perfection of satisfying the Lord, the ultimately goal of all perfection. So Prabhupada has written a long purport. Basically, the creation is the secondary creation. How Lord has created the different universes, this has been explained here. So further it will be explained how Lord enter in all those universes and how the creation happens. This creation is a very complicated issue. Whenever we read this second canto, there are many things which are very difficult to understand.
because things are so subtle that we cannot perceive everything. That's why Lord Chaitanya has given this principle of Achintya Bheda Bhed. Bhaktivinoda Thakur writes, we can learn, we can know something about the Vaikuntha, but we cannot know everything about the Vaikuntha because Vaikuntha is beyond logic. So now there is a question: when scientists know about the God by their scientific advancement, is there any possibility that that day can come when through their research, through their discoveries, the day will come when scientists will be able to know about the God? Answer is yes. The answer is no. Why? Because every method has its limitation. If I will say you can measure the size or length of this room, yes. You have an inch tape and one person will hold on this side, other person will hold on the other side. We can measure the distance of the room. But if I will say, can someone measure the distance between sun and earth? And if someone will apply the same principle, okay, I will hold this inch tape here and you fly in the airplane and reach near the sun. No, this method is not applicable to measure the distance between sun and earth. It is a different method to know the distance between sun and earth. In the same way, when we talk about the creation, everything we will understand, it's very difficult. Yeah, we can have information, but how much we can digest it, how much we can understand it, it's very difficult. Because to understand about all these things, there is a specific process. Just only by our senses, it's very difficult to understand all this creation. But we have two options. One option is Big Bang, other option is Big Brain. When we talk about the Big Bang, yes, there's a big explosion, and from that big explosion, everything came. So we have one philosophy this side, and other side we have this philosophy how this world has been created by Brahma, who got intelligence from Lord Krishna himself, and where everything is explained, like in this purport, he has clearly explained how from the mode of goodness, the creation happens. Who is coming from the mode of goodness? Who is coming from the mode of passion? Who is coming from the mode of ignorance? So all these things has been explained properly in the Vedic scriptures. Now question may come, why all these things? If Parikshit Maharaj is about to die, what is the need to explain all these things? सीधा कृष्ण भक्ति की चर्चा करते, ये सब इतना कठिन क्यों लिख लिया, अपने दिमाग में जा नहीं रहा है. So because the symptom of a Mahapuran is there must be 10 subject matter. So atra sarga visargasya. कोई बोलेगा कि प्रभु जी सीधे सीधे कक्षा शुरू करो, मंगलाचरण करने की आवश्यकता क्या? नहीं, एक फॉर्मेट है कक्षा का कि पहले मंगलाचरण होगा, राधा माधव होगा, ये हमारी संस्था का नियम है, उसके बाद मंगलाचरण होगा, उसके बाद हम कक्षा करेंगे. सो महापुराण का नियम है कि आपने सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति ऑल दीज थिंग्स मस्ट, क्योंकि इतना सारा भगवान इतिहास में इतना सारा वर्णन है, तो इन दैट महापुराण कौन कौन सी चीजें हमें लेनी है, देयर इज अ गाइडलाइन. एज पर दैट गाइडलाइन सुखदेव गोस्वामी इज एक्सप्लेनिंग दिस भागवतम पुराण, भागवतम महापुराण to Parikshit Maharaj. So that's why all these things has been compiled, the Mahapuran Śrīmad-Bhāgavatam, because this is the subject matter of Sarga and Visarga. Primary creation and secondary creation. That is been explained in the second canto. So the subject matter of second canto is Sarga and Visarga. How Lord has created this world and how Brahma has created this world. Primary creation, secondary creation. So in that creation, in the series of creation, here it has been explained
Brahmaji is explaining the creation process to Narada, because Narada has asked this question. So Brahmaji is explaining to Narada, and how from the goodness creation happened, that has been explained in this shloka. Now you will see in many slokas of Bhagavatam, Prabhupada purports goes in different direction. Like here you will see like 10 deities, 10 demigods, they comes from the goodness. But Prabhupada is not writing anything about the goodness. Prabhupada is not writing about these 10 demigods. Prabhupada went in different direction. And that is the best gift of Srila Prabhupada to this conditioned world. That how this purport can be understood in our life. So basically Prabhupada is explaining about the goodness, how we can cultivate goodness in our life, how this modern culture is filled with passion and ignorance, and how we can lead our life towards goodness. So here Prabhupada writes about the artificial needs purport. When we read 10th canto in the Śrīmad-Bhāgavatam, description of Dwarika, you will find there are many jewels in the Dwarika city, and everything is illuminated by those jewels. So most sustainable system, कोई बिजली बिल नहीं चाहिए और करंट लगने का भी कोई समस्या नहीं. Recently, one of our brahmachari devotee died in Juhu, Bombay, on the day of Ram Navami due to electric shock. सबसे सस्टेनेबल सिस्टम भगवान श्री कृष्ण का है. ना बिल भरना है, ना इतना दिन रात परिश्रम करने की आवश्यकता है, और ना ही किसी को इलेक्ट्रिक शॉक से किसी का मृत्यु होगा. Second thing we see, when Lord Krishna went to take Rukmani Devi to Kundinpur, he went by his chariot. उनमें 4 घोड़े लगे हुए थे. ओवर द पीरियड टाइम जो द्वारिका आए हैं, द्वारिका से कुंडनपुर मतलब विदर मतलब नागपुर, अभी भी आप ट्रेन से जाएंगे, इट विल टेक अप्रॉक्स 24 आवर्स, एंड लॉर्ड कवर्ड द डिस्टेंस इन ओवरनाइट. भगवान के घोड़े थे. कल्चर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कल्चर ऑफ डिपेंडेंस. देयर आर 2 काइंड ऑफ कल्चर. द वैदिक कल्चर इज द कल्चर ऑफ इंडिपेंडेंस. The modern culture is the culture of dependence. For each and every single activity, we are dependent on many things. If those things can take away from us, for us it will be very difficult to survive. That is the modern culture. As Grace Sahadev Prabhu writes, culture of oil and electricity. Culture of oil and electricity. If you withdraw these 2 things, we cannot imagine the culture. I think Shyam Chandrapur must be aware, if we go to Rajasthan, there are many big forts in Rajasthan, and now people go to see those forts. Oh, people were staying here like this, people were staying here like this. There are chances the time will come and people will go to Bombay, or people will go to big cities. There are big multi-story buildings are there, and they will see how people were staying in those cities. Once electricity and oil, there is no electricity, no oil. Then the time will come and people will see all these buildings as we are seeing now, these forts. So culture of dependence and culture of independence. That's why Lord Krishna, when in the Khandava Prastha, when Arjuna and Krishna both went to destroy this fire, Maidanav came, and Maidanav was he was giving boon to Arjuna. Arjuna, you can take this method, Yantra Vidya. Yantra Vidya. At that time, Lord Krishna told, in Mahabharata it comes, Lord Krishna told Arjuna, don't keep this Vidya. I will say Avidya. This is for the age of Kali. So there is Mantra Vidya, there is Tantra Vidya, there is Yantra Vidya. And what Prabhupada writes here, this is the Yantra Yuga. सब कुछ यंत्र से चल रहा है यहाँ पे. Artificial needs, there is culture of dependence, there is culture of independence. और इतना सारा हमने
अपना आवश्यकता पैदा कर लिया है जिनकी वास्तव में जरूरत ही नहीं थी। इतना सारा आवश्यकता कर लिया। यदि आप थोड़ा सा बैठेंगे शांत चित्त होके और सोचेंगे तो बहुत सारी जरूरतें तो हमने खुद ही बना ली। और एक ऐसे मेंटलिटी लोगों की तैयार हो गई है कि यदि ये सुविधा किसी के पास है, ये किसी के पास है, यदि आप भागवतम के 11वें स्कंद में देखेंगे 24 गुरु के अंदर एक गुरु धरती माता भी है। एक तो उनकी सहनशीलता और दूसरी उनकी कृपा। आलू, टोमेटो, सारी सब्जियां, सारे रत्न, सब कुछ धरती माता के अंदर छुपा हुआ है। एक वृक्ष लगाने की आवश्यकता है, सुंदर सुंदर आम के पेड़, आम के फल वहां से बाहर निकल जाए। एक छोटा सा पौधा लगाने की आवश्यकता है, जिंजर, कैरेट, सब उधर से निकल के आ जाता है इजीली। तो सब कुछ धरती माता के अंदर छुपा हुआ है। और पृथु महाराज का जीवन चरित्र ये बताता है कि पृथु महाराज ने जब इस पृथ्वी नाम उससे पढ़ा, जब उन्होंने उसको कल्टीवेट करना शुरू किया तो धरती माता ने सारे जो भी प्रोडक्ट्स थे उन सबको अपने अंदर छुपा के रखा था। तो पृथु महाराज ने धरती को दंडित करना शुरू किया, धनुष बाण लेके उसके पीछे भागे। तो उन्होंने कहा कि ये आपने क्यों छुपा के रखा है? तो धरती माता बोली, क्योंकि इतने आसुरी लोग, आपका पिता जो बैंड था, इतने आसुरी लोग मेरा दोहन कर रहे थे, इसलिए मैंने सारे प्रोडक्ट्स को छुपा के रखा था। अब आगे में पढ़ेंगे, खाली द्वारका की जनसंख्या 10 अरब थी। खाली द्वारका की जनसंख्या, अभी तो पूरे विश्व की जनसंख्या 150 करोड़ है लगभग, या 6 अरब है। इतना कम जनसंख्या है। द्वारका की जनसंख्या इतनी ज्यादा थी। क्यों? माता के अंदर ये स्वभाव है कि माता के अंदर माता के कितने भी पुत्र हो जाए ना, माता उन सबका पेट भर ही सकती। ये माता के अंदर स्वभाव है। लेकिन आर्टिफिशियल नीड्स, आपके खाने की आवश्यकताएं पूरी कर सकती है, लेकिन आपका जो भोग है उस भोग को पूरा करना किसी के बस की बात नहीं। So someone may say, okay, if there are so many facilities, why Prabhupada is criticizing all these things? Why is saying artificial needs? Why is saying culture of dependence, culture of independence? Why Prabhupada is criticizing all these things? The reason is those who are preaching, they can clearly understand this. If you go to preach in villages, I go usually now in the villages of Gujarat, people have ample of time, lot of time they have. Those who are doing just cultivation farming, they have a lot of time. वो बात और है कि अभी मोबाइल में और टीवी में अपना सारा समय बर्बाद कर रहे हैं, but they have a lot of time. So when we follow this natural way of life, then we have a lot of time which we can engage the ultimate purpose of this human life for the purification of our senses. The purpose of human culture is purification, but this material culture is avoiding or creating disturbance in the ultimate purpose of purification. ये दुनिया कैसे कैसे चलता है? एक चीज, मान लो कार बन गई, अब कार को चलाना है तो तेल खोजना पड़ेगा, फिर चलाना है तो रोड बनानी पड़ेगी, फिर कार को सुधारना है तो मैकेनिक चाहिए। इन सबके लिए कुछ लोग चाहिए जो वहां काम कर सकें, तो ITI वाला चाहिए, इंजीनियर चाहिए, रजिस्ट्रेशन हो सके उसके लिए RTO डिपार्टमेंट चाहिए, कोई बेच सके उसके लिए बड़े मॉल चाहिए, उनको कोई उसको पढ़ने के लिए कॉलेज में टीचर्स चाहिए, कॉलेज में वो कॉलेज चाहिए, वहां इंजीनियर्स चाहिए। तो कैसे सारा आर्टिफिशियल नीड्स। सिर्फ एक क्रिएशन कार ने, और सार्वभौम प्रभु एक बार बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, मैं अहमदाबाद में बैठा था, प्रवचन सुन रहा था, तो प्रभु जी बोले कि ये बताओ अहमदाबाद शहर में आज तक कितने लोगों को शेर ने खाया? बोले प्रभु जी एक भी आदमी को शेर नहीं खाया अहमदाबाद। तो बोले ये बताओ अहमदाबाद शहर में आज तक कितने लोग इस गाड़ी के द्वारा मारे गए, कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ? तो रोज ही मारे जाते हैं, रोज ही 2-4 एक्सीडेंट होते हैं। बोले बताओ शेर खतरनाक, ये 4 पहिया कार खतरनाक? तो प्रभु जी का अपना एनालॉजी होता है। आर्टिफिशियल नीड्स, क्या भगवान श्री कृष्ण के पास इतनी क्षमता, इतनी शक्ति नहीं थी कि वो
निर्माण कर सकें, कर सकते थे। उनने जब जिसको बुद्धि दिया तो सो बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस मटेरियल कल्चर इज प्यूरिफिकेशन। और इंद्रियों का जो स्वभाव है, इंद्रियों का स्वभाव ऐसा होता है कि इंद्रियां जितना उनको आप इंद्रिय तृप्ति की फैसिलिटी देंगे उतना वो और एंगेज होती है। बहुत अच्छी स्टोरी आती है कि एक बार एक राजा के पास एक बकरी थी। द नेचर ऑफ सेंसेस, हाउ इज द नेचर ऑफ सेंसेस। राजा के पास बकरी थी, तो राजा बकरी को जब भी खिलाए, बकरी को जिन्हें देखा है मुंह चलाती रहती, खाती रहती। तो राजा को ऐसा लगता था कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैं अपनी बकरी का पेट नहीं भर पा रहा हूँ, क्या करूं मैं बकरी के लिए। तो राजा ने अनाउंसमेंट कराया राज्य में कि भाई जो हमारी बकरी का पेट भर के लाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लोभी लोग सब जगह होते हैं। वहां पे एक व्यक्ति आया, बोले महाराज 3 दिन का समय दो, चौथे दिन आपकी बकरी का पेट भर के लाएंगे। ले गया, बहुत खिलाया पिलाया बकरी को। चौथे दिन बकरी को लेके आया, राजा ने जैसे घास दिखाई, बकरी दौड़ी दौड़ी आई और घास खाने लगी। राजा बोला जेल में डालो इसको, हमारी बकरी को इतना भूखा रखा है। दूसरा आदमी आया, उसने 3 दिन का समय मांगा, उसने भी बहुत खिलाया। चौथे दिन लेके आया, फिर बकरी घास खाने लगी। तीसरा आदमी आया, बहुत बुद्धिमान था, बकरी को लेके गया, बहुत सारे पकवान जो इंसान खाते वो पकवान बना के रखे, और जैसे बकरी खाने आया एक डंडा लगा, जैसे बकरी खाने आया एक डंडा लगा। एक दिन उसने पिटाई करी उसकी, दूसरे दिन डंडा लेके वहां बैठ गया, और तीसरे दिन खाली पकवान वहां छोड़ दिए। बकरी आती थी कमरे में, वो पकवान देख के वापस लौट जाती थी। जब राजा के पास चौथे दिन उस बकरी को लेके पहुंचा, परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि बकरी, जैसे राजा ने घास दिखाई, बकरी वहां से भागी। राजा ने बोला हाँ तुमने मेरी बकरी का पेट भरा है। लेसन ये है कि हमारी इंद्रियों का स्वभाव ऐसा है, जितना इनको खिलाओ पिलाओ, जितना इनको सुविधा प्रदान करो ना, उतनी इसकी डिमांड बढ़ती है। इसलिए इंद्रियों का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि शुद्ध अवस्था में वास्तव में इंद्रियों की ज्यादा कुछ आवश्यकता होती नहीं। जब इंद्रियां अशुद्ध अवस्था में होती हैं तभी उनको आवश्यकता होती है इन सारी भौतिक वस्तुओं की। तो दुष्प्रभाव, डिसएडवांटेज ऑफ एंगेजिंग टू मच our senses in the sense gratification for the artificial needs, कि हमारी जो मनुष्य शक्ति है, the purpose of human life is defeated because we are engaged so much in these material gross activities. We have less time for the Krishna consciousness. The purpose of human life is purification. That's why Prabhupada writes in this purport, Rishikesh. How can we purify our senses? To purify our senses, the way to purify our senses is Rishikesh Shevanam Bhakti Ruchyate. Our senses, they are involved too much in the sense gratification. Once we engage our senses in the service of Krishna, then naturally these senses will be purified. What to do? Once one person asked to Srila Prabhupada, Swamiji, you are a sannyasi, you are traveling in flight. Why are you traveling the flight? And Prabhupada told, because people are running so fast towards hell, that to protect them, I also run fast with these flights, with these airplanes. कई बार मैं भी जब विद्यार्थी था तो भक्त लोग इस आधुनिक भौतिक सभ्यता की बहुत निंदा किया करते थे, और मेरे मन में एक ही प्रश्न आता था, उन्हीं के बनाए हुए लैपटॉप से प्रवचन कर रहे हो, उन्हीं के बनाए हुए मोबाइल में आप जूम के ऊपर क्लास कर रहे हो, जूम एप्लीकेशन उनका, मोबाइल उनका, लैपटॉप उनका, उनकी प्रिंटिंग मशीन से भागवत छाप रहे हो, और उन्हीं की निंदा कर रहे हो इस भौतिक विकास की मटेरियल नीड्स की। वास्तव में भगवान के भक्त जो हैं वो जूम को, इस मोबाइल को, इस लैपटॉप को, इस एयरपेन को प्यूरिफाई कर रहे हैं। जिसने बनाया उसने कभी जूम इस दृष्टि से नहीं बनाया था कि भगवान के भक्त बैठ के भागवत की चर्चा करेंगे। उसने तो कुछ और ही उद्देश्य से बनाया था कि कॉर्पोरेट के लोग आएंगे, उससे मीटिंग करेंगे और गधे जैसा बड़ा बड़ा काम करेंगे, है कि नहीं? लेकिन भगवान के भक्त वास्तव में इन सारी वस्तुओं का उपयोग करके इन सारी वस्तुओं का शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो ये मेरे मन में भी आता था कि हम सब सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं और क्रिटिसाइज कर, वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग, लेकिन जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो हमारे आचार्यों के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी के द्वारा उसको बताया गया है। तो ये इंद्रिय तृप्ति रूपी, प्रभुपाद जी लिखते हैं, इंद्रिय तृप्ति रूपी रोग का उपचार बहुत आवश्यक है। लेकिन इंद्रिय तृप्ति रूपी रोग का उपचार होगा तभी, कहते हैं रिकॉग्निशन लीड्स टू करेक्शन। Until and unless we don't recognize that there is some problem, we cannot solve that problem. I told to one person
why are you drinking liquor? बोले इसमें खराबी क्या है? हमने कहा अभी इसको सुधारना बहुत कठिन काम है। जो व्यक्ति स्वीकार ही नहीं करता कि शराब पीना गलत है, और उसको कैसे सुधारेंगे? हाँ, यदि कोई व्यक्ति चाहता कि मैं ये बैड हैबिट है, मैं इसको ओवरकम करना चाहता हूँ, देन ओनली वी कैन हेल्प द सेम वे। तो ये इंद्रिय तृप्ति रूपी रोग का उपचार तभी संभव है जबकि व्यक्ति स्वीकार करे कि इंद्रिय तृप्ति रूपी रोग है। So his राधा गुण महाराज was telling one story। एक रानी थी और रानी को फीवर आ गया, और उसकी जो दासी थी उसको भी फीवर आ गया। तो वैद्य आया चेक करने के लिए, देखा रानी को फीवर 100 है और दासी को फीवर 102। तो जब रानी को पता चला कि वैद्य कह रहा कि रानी को 100 और दासी को 102, तो रानी बहुत गुस्सा हो गई। बोले ये दासी है इसका 102 और मैं रानी मेरा 100, कुछ भी करो हमारा फीवर बढ़ना चाहिए, कुछ भी उपाय करो हमारा फीवर बढ़ना चाहिए। तो ये आज के इस इंद्रिय तृप्ति रूपी समाज में स्थिति हो गई है कि वास्तव में हर व्यक्ति ये प्रयास में लगा हुआ है कि किस प्रकार से और इसको बढ़ाया जाए, लेकिन इस सबसे बचने का एक ही सिद्धांत है। तो देखिए, आपके लिए, हमारे लिए, किसी के लिए आज ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि हम सब छोड़ छाड़ के किस प्रकार से हम जो है इस सबको छोड़ना, हम सबको भी संभव नहीं है, ना हमें संभव ना आपके लिए संभव है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सरल सिद्धांत दिया है, जो है हम अपनी आवश्यकताओं को ज्यादा ना बढ़ाएं, सरल जीवन को अपनाएं और ज्यादा से ज्यादा हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करें। और ये विचार हमेशा अंदर रखें कि वास्तव में हम जो कर रहे हैं कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं कि खाली कृष्ण की सेवा के लिए 10% और 90% अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। उसके लिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है कि कितना हमारे लिए और कितना कृष्ण के लिए। तो छोड़ने की बात नहीं है, छोड़ने के लिए कृष्ण ने ही मना किया है। अर्जुन तो कह रहा था घर परिवार के लोगों के लिए सब छोड़ दूंगा राजपाट। भगवान बोले तुम्हारा वैराग्य झूठा है, वास्तविक वैराग्य तो ये है कि तुम भगवान की सेवा में हमारी इच्छा से कार्य करो। तो ये प्रभुपाद जी अंत में इस तात्पर्य में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का एक विशेष विवेचन करते हैं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के नाम पे। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसके विषय में कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति का सामान्यतः जो प्रयास होता है कि वो भगवान की इंद्रियों की अवहेलना करते हैं कि इंद्रियां हैं नहीं। योगी व्यक्ति आर्टिफिशियली उन सेंसेस को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, और भक्त जो हैं उन्हीं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए भक्ति की जो पद्धति है वो सबसे आसान हो जाती है। दूसरा प्रभुपाद जी इसी के संदर्भ में कहते हैं जो ज्ञानी होता है वो जो इंद्रियों the activities of senses, someone engaged too much in the activities of senses, what are the disadvantages of that has been observed by the jnani. Yogi, he try to stop those activities of the senses, and bhakta, he try to engage those senses in the service of Krishna. So that is basically difference between jnani, yogi and bhakta. So all these things has been explained in this text, that how by reducing our material needs, how reducing our artificial needs, engaging more and more in the service of Krishna, above from the jnani, above from the yogi, on the platform of bhakta, how we can overcome these mode of passion and mode of ignorance, which are mostly observed in the material creation. We can uplift ourselves to the mode of goodness. From goodness, we can uplift ourselves to the mode of pure goodness. So this is what Srila Prabhupada has explained in this purport. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Dhira Shanta Prabhu, for the class and enlightening us. So I request any of devotee who have, I think Prabhu, you have done with the class, right? Yes, Prabhu. My side is complete. Okay, thank you. So I request devotees to please ask question if you have. This a wonderful. We have 25 devotees online, and I don't know, Prabhu, they are from your congregation like Anjana and Dev.
Haripreet, because I don't know these devotees. Maybe they are from our congregation. If they are our congregation, I request them please join our group of the PCP Practice and Counseling Program. And these devotees who are not They enrolled might be in from the program. Krishna Prabhuji. Okay. Hare Krishna Okay. Prabhuji, Dandavat Pranam. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Hare Krishna. Prabhuji, I am a sister of Pankaj Sopri. My question is, प्रभुजी जैसे बताते हैं कि सात्विक भोजन करना चाहिए और हम तो सात्विक ही पाते हैं ना, क्योंकि वैष्णव है और इनिशिएशन भी हुआ है। तो जो सात्विक भोजन होता है उसमें कहते हैं कि जो खट्टा मीठा चटपटा वो तो राजसिक भोजन में आ जाता है। तो जो हम तो प्रसादम पाते हैं बट फिर भी मतलब खट्टा मीठा तो सब पाते ही है ना, तो वो किस में आता है, तामसिक राजसिक में सॉरी या सात्विक में? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आहार जो है एक बहुत ही भक्ति का महत्वपूर्ण अंग भी है, लेकिन ये विषय भी बहुत जटिल है। आहार में दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है आहार की वस्तु कौन सी है, और दूसरा होता है आहार कौन सी चेतना से ले रहे। दोनों ही चीजें। तो आहार की जो वस्तु है वो तो सात्विक होनी ही चाहिए। तो अति तिक्त, बहुत तीखा है, बहुत खट्टा है, इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं तो निश्चित रूप से जैसा गीता में बताया गया है वो हैं। यदि उसमें कह रहे हैं कि ये राजसिक हैं, ये तामसिक हैं, तो वही उनका स्वभाव है। और इसलिए और एडवांस करने के लिए यदि हम उसको अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। दूसरा ये है, कभी कभी सात्विक भोजन भी हम राजसिक चेतना में ले लेते हैं। भोजन सात्विक हो सकता है लेकिन राजसिक चेतना मतलब और अन्य और अन्य और अन्य और मोर 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 मोर, इस तरीके से। तो आहार के लिए नियम यही है, आदर्श नियम यही है कि शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए जितने आहार की आवश्यकता है उतना आहार ग्रहण किया जाए, क्योंकि यही आहार का सिद्धांत है। यदि हम उससे अधिक कुछ ऐसे करते हैं इंद्रिय तृप्ति की दृष्टि से तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। अभी मायापुर गया था तो मायापुर में सुलभ किचन के जस्ट पहले एक बोर्ड लगा था, किचन रिलीजन। तो चैतन्य महाप्रभु, हम सिर्फ कृष्ण के उपासक नहीं, हम चैतन्य महाप्रभु के उपासक हैं। और चैतन्य महाप्रभु, यदि आप मायापुर की लीलाएं देखेंगे और चैतन्य महाप्रभु की आप जगन्नाथपुरी की लीलाएं देखेंगे तो भक्तों के बीच में इस आहार के खाने खिलाने की बड़ी महिमा है। तो इस, और रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजते चैव सर्वधि प्रीति लक्षणम। प्रीति इससे बढ़ती है। तो हम बहुत खट्टा हो, बहुत तीखा हो, जो भी हो, हम उसको सही चेतना के साथ ग्रहण करें, भगवान को अच्छे से भोग लगाएं और अच्छे से भोग लगा के उसको आध्यात्मिक चेतना की एक प्रसाद है, उस प्रसाद की चेतना के अंदर हम ग्रहण करें तो निश्चित रूप से उससे हमारा आध्यात्मिक कल्याण होगा। फिर भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा आंदोलन जो है विश्वव्यापी, तो आप अमेरिकन व्यक्ति से नहीं कह सकते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। लेकिन हरि भक्ति विलास में आप देखेंगे तो बहुत सारे नियम लगाए गए हैं, बहुत सारी चीजें हम सब पढ़ेंगे तो हम सबको करना भी कठिन हो जाएगा। इसलिए हम श्रीला प्रभुपाद जी के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, जो है भगवान को भोग लगाओ अच्छे हृदय से और उसको प्रसाद की चेतना से ग्रहण करो, तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में वो बाधा नहीं बनेगा। तो इसमें मतलब दोनों ही हैं, एक आहार का प्रकार है कि ये आहार सात्विक राजसिक तामसिक कौन सा है, और एक लेने का भाव है कि हम सात्विक राजसिक तामसिक कौन सी चेतना में उसको ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा प्रयास यही है कि सात्विक आहार सात्विक चेतना से ग्रहण करें तो हमारा आध्यात्मिक कल्याण। जी प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। मेरा क्वेश्चन है, ऑफिस में यहाँ से 4-5 साल पहले
उन्होंने कुछ मुझे ऐसे वीडियोस दिखाए थे जिसकी वजह से मैंने नॉनवेज खाना शुरू किया था. दैट टाइम माय रीजन ऑफ लीविंग नॉनवेज वाज नॉट रिलीजियस बट इट वाज प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड. और अब 2 साल फिर कोरोना के बाद जब मैंने ऑफिस जाना शुरू किया है तो जिन 2 लोगों ने, उनमें से एक ने, ही इज अ पंडित बट उसने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया है. और अब पूरे टीम में हम 14-15 लोग बैठते हैं. तो उनमें से एक मैं हूँ और एक और लड़का है जो हम लोग गार्लिक एंड अनियन भी नहीं खाते. रेस्ट ऑफ द पीपल टीम मेंबर वो सब कुछ खाते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हैपनिंग एवरी डे कि ये लोग हमारे खाने का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ये लोग कभी बाहर से ऑर्डर कर रहे होते हैं, कभी कुछ, तो वो मजाक उड़ा रहे होते हैं कि अरे तुम क्या खा रहे हो, क्या ये नमक का ही स्वाद आ रहा है, ये सब आ रहा है. तो कई बार तो उनको हैंडल कर लेते हैं, कई बार उनको हैंडल करना समझ नहीं आता कि उनको क्या जवाब दें. सिमिलरली अपने रिश्तेदारों में, क्योंकि हमारे रिश्तेदारी में सब लोग मतलब कि सैड टू से बट हर कोई ड्रिंक्स करता है, नॉन वेज खाता है, पार्टीज इनकी मिला पूरी नहीं होती है. तो कई बार पार्टीज अवॉइड कर सकती हूँ, लेकिन कई बार मुझे उसमें जाना पड़ता है, तब मुझे बहुत बातें सुननी पड़ती हैं लोगों की. प्रभु जी, मैं ये सब चीजें कैसे हैंडल करूँ? कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उन लोगों को क्या जवाब दूँ. कैन यू हेल्प मी विद दैट? So there are 2 ways, Mataji, to deal with these situations. One is protecting way, the second is the attacking way. Protecting way, you are very cool. आप हर्ट नहीं करते हैं सामने वाले को, और आप you are just trying to avoid. ये प्रोटेक्टिंग वे तब चलता है जब स्थितियां कभी कभी ओकेशनली, जैसे हम किसी रिलेटिव के यहाँ गए तो हम जस्ट वी ट्राई टू अवॉइड, नहीं आज ये नहीं खाते हम, और 1-2 दिन की यदि कहीं बात हो, देन वी कैन यूज द प्रोटेक्टिंग वे टू डील विद दिस सिचुएशंस. व्हेन इट इज रेगुलर इन अवर लाइफ कि ऑफिस में से चल रहा है, ऑफिस तो भाई 365 दिन ही जाना है, देन वी शुड एक्सेप्ट द सेकंड वे टू डील विद दिस पीपल, दैट इज द अटैकिंग वे. द वे ऑफ अटैकिंग इज आपको अपनी पर्सनालिटी पूरी खोल के रख देनी है. उनको ये क्लियर होना चाहिए कि ये बंदा ऐसा है कि शायद धरती ऊपर से नीचे हो जाए, चाहे आग लग जाए, चाहे बारिश हो जाए, ये बंदा कुछ करने वाला है नहीं. उससे होगा क्या कि धीरे धीरे वो आपकी पर्सनालिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो यहाँ वहां की जो बातें बोलते हैं वो बोलना सब बंद कर देंगे. कैसे अटैकिंग होना है? अटैकिंग के कई तरीके होते हैं, उनको हम चीजों को एक्सप्लेन करें. यदि लॉजिकल कोई बंदा है तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक बेस्ड हो सकता है, वो एक्सप्लेनेशन स्क्रिप्चरल बेस्ड हो सकता है, वो एक्सप्लेनेशन ह्यूमैनिटी और इस पे बेस्ड हो सकता है, समाज के ऊपर बेस्ड हो सकता है. ये 3 तरीके से एक्सप्लेन चीजों को करते हैं. और जब कोई व्यक्ति, कहते हैं ना, कंटकम कंटकन्यो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको आप न शास्त्र से समझा ही नहीं सकते. ऐसे लोगों के सामने अपने को एकदम डंडे के जैसा दृढ़ हो जाना चाहिए कि मैं तो ये करने वाला हूं नहीं, मैं तो ये करने वाली हूं नहीं. देखिए, जब कोई व्यक्ति हमारे लिए, बड़ी अच्छी मैंने बात सुनी थी एक वक्त से, कि जब आपका कोई दोस्त आपके लिए इन सारी बुरी चीजों से दूर होने के लिए तैयार नहीं है, तो हम ऐसे दोस्तों के लिए, हमें हमारे जीवन में जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमें जो इतना अच्छा मार्ग मिला है, हम क्यों ऐसे लोगों के लिए अपने इस मार्ग को कॉम्प्रोमाइज करें? तो ये माता जी हम सबके साथ समस्या है. गौरांग प्रभु कह रहे थे, वी आर इन माइनॉरिटी. By coming in ISKCON, we are in minority because still we are not eating onion and garlic also. तो वो तो सब झंझट हमें झेलना ही है, समस्या करनी है. जहाँ माइनॉरिटी में जो लोग होते हैं तो वो हमें संघर्ष करना है, और मेजोरिटी में आने का प्रयास कीजिए, प्रचार कीजिए. कम से कम अभी आप 2 लोग हैं, यदि आपके पास 5 लोग या 6 लोग भी आ जाएंगे तो आपका थोड़ा सा बल बढ़ जाएगा. So this is how what I did in my college life, in my professional life when I was working. So इस तरीके से मेरे काफी फायदा होता है. और नो डाउट वो कहते जरूर हैं कि क्यों नहीं खाते, नमक वाला खा रहे, ये खा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर उनके हृदय में उनको एक पक्का पता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं शराब पी रहा हूँ, जो मैं मांस खा रहा हूँ, ये गलत है. लेकिन यदि हम भी उनके जैसे, यदि हम उनके लिए ऐसे स्तंभ के जैसे उनके अगेंस्ट में खड़े नहीं होंगे, तो उनको लगता है हाँ ठीक है, सही चल रहा है. तो आज 99% लोग खांस रहे हैं,
1% डिस्काउंट के भक्त हैं जो नहीं खांस रहे हैं, लेकिन हमें लोग कह रहे हैं कि आप लोग बीमार हैं, लेकिन हम लोग बीमार नहीं है। बीमार वो लोग हैं जो खांसी है, जिनको जो जुकाम जिनको हुआ है। हमें अपने ऊपर फिक्स अप रहना है। तो ये मुझे लगता है ये आपको मदद करेगा, करके देखिए। क्योंकि श्यामचंद्र प्रभु हैं आपके लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस के लिए, आप प्रभु जी से कंसल्ट कर सकते हैं। जी प्रभु जी। प्रभु, एक क्वेश्चन और है मेरा। जब हम मनीषा माता जी, मनीषा माता जी, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन 2 मिनट में आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो that those who are drinking, eating meat and doing all nonsense things, they know this is wrong and what we are doing is right. तो जो 10 पागल जब मिल जाते हैं तो वो 10 पागलों का टोला बन जाता है, तो इंटेलिजेंट आदमी फिर माइनॉरिटीज में आ जाता है। नंबर 1 थिंग इज दैट इन देयर हार्ट this is a completely, I tell you that they believe that what they are doing this is perfect, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि वो आचरण नहीं करते ना, वो तो सब गलत कर रहे हैं, वो क्यों एडवर्टाइज करेंगे। तो मुझे अगर आप पूछिए तो मुझे 6 नॉट ईटिंग दी ऑल नॉनसेंस थिंग्स, बट वी आर नॉट एक्सट्रीमिस्ट। जैसे कि हम विवाह शादी वगैरह में जाते हैं तो श्री विष्णु करके भगवान को स्मरण करके थोड़ा सा हम सैलेड वगैरह, जूस है, फ्रूट वगैरह, जैसे हम दुबई में है, यहाँ पर आए दिन हमारी कॉन्फ्रेंस होती है 5 स्टार होटल में। अब वहां पर जाते हैं तो हम लोगों को ऐसा, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। एंड somebody comes to me and they said why you are not eating, I said because I am avoiding this, but एक व्यक्ति आया, उसने मुझे बोला सच सच बताओ क्यों नहीं खा रहे, तो क्या कि I follow the Hare Krishna and which are not offered to the Lord. But he says you are getting a higher taste. That is the reason you are not taking the lower taste. So he was very impressed and he said there are 2 पंडित, you know, उनकी चोटी भी थी और उस दिन एकादशी थी। अभी मैं एक 5 स्टार होटल में गया था 2 दिन पहले, तो वहां पर एकादशी थी एंड दे वर वेरी वेरी अशेम्ड। उन्हें इतनी शर्म आ रही थी कि जब मैं सिर्फ जूस ले रहा था, मेरे हाथ में सिर्फ जूस था, तो मैं जूस पी रहा था, ऑरेंज जूस, और उसके बोला कि आई एम सेटिस्फाइड। So thing is very clear, they feel that you are not right or wrong, but inside they are wrong and they are right, and it takes 6 months for you to adjust in this environment. After these people will start accepting you, and if you are accepting these people, then it is a dangerous for you. And as Dhira Shanta Prabhu said, we need a preaching, we need to preach these people. And just imagine, आप तो इंडिया में रह गए, जो कि भारतवर्ष है जहां पर वैदिक संस्था, हिंदू सनातन धर्म का इतना है। जस्ट इमेजिन हाउ the devotees are managing those who are not living in the unfavorable condition, like in my home country or the country where we are living. But faith in Krishna, Krishna is watching you, and Krishna can see your sacrifice that you are doing. And living in the 5-star hotel, you are not consuming the things which are not favorable for Krishna consciousness. The people admire you and honor you after 10 or 15 years. And I have seen in my life that still these people are coming and share कि प्रभु जी आपको न, मैंने जिस पद पे आप चल रहे हो ना, वो पद वो है ना शांति का है, वो भगवान का पद है, और हम लोग ने अपना जीवन में क्या किया, वो सारा को वो किया। तो वी नीड टू इंस्पायर द पीपल, वी आर इन द सोसाइटी, हमको एलियन की ही जीत होती है। द पीपल विल गेट इंस्पिरेशन बाय योर बिहेवियर, see your following Krishna consciousness. This is the Krishna consciousness. कलयुग के अंदर भक्ति करना, जैसे कि हम बता रहे कि काफी ऐसे देश हैं, वहां पर आप जाओ, किर्गिस्तान में, पाकिस्तान में, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि अगर आप वहां पर आपको भेज दिया जाए कि कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर अगर कोई भक्तों में भी अगर आपको पूछते हैं अरे प्रभु जी आप ये खाते वो खाते, तो अगेन दिस इज वेरी डिफिकल्ट। सो वी हैव टू बी इंटेलिजेंट and do the favorable thing. I like the Prabhu lecture. Prabhu said that try to be your life, then Krishna will arrange everything. I give you my experience. मैं ओमान में प्रोजेक्ट के लिए गया था 6 महीने, और वहां पर भगवान ने ऐसा किया कि 2 गली छोड़ के, after 2 my hotel was there, and after 2 road there was a devotee who was living, Jayapataka Maharaj disciple, and he used to provide me the prasad, but I stayed for 2 days. I did not eat anything except from the fruit. But after that they arranged. So Krishna is very merciful. Don't feel, don't bring yourself down. आप अपना अंदर ऐसा मत रखिए हम कुछ माइनॉरिटी है, आपको प्राउड होना चाहिए। You should be very happy that you are in Krishna conscious. ये देखो
क्या क्या खा रहे हैं, मृत शरीर खा रहे हैं, मृत शरीर, उनको शर्म नहीं आ रही है, they feel proud but inside they feel no, it is not good. Okay, sorry Dhira Shanta Prabhu. Hare Krishna. Nice explanation, bro. Practical experience. Okay, थैंक यू Prabhu. प्रभु जी, थैंक यू, काफी कुछ शक्ति मिली, यू नो हाउ टू डील विद दीस पीपल। थैंक यू सो मच। क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि मतलब हर बार यही चर्चा। एक दो बार मैंने उनको स्नब भी किया, प्लीज डोंट टॉक टू मी, अगर आप लोगों को जो खाना है आप वो खाओ, और जो मेरे को पालन करना है मैं वो पालन कर रही हूँ। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न और है, आई एम टेकिंग योर टाइम। जब हम लोग भोग बनाते हैं ठाकुर जी के लिए, तो उस समय लगता है कि बहुत रच बच के बनाते हैं कि ये इतना अच्छा टेस्ट होना चाहिए, ये तो क्या वो ठीक है? मतलब क्या, बिकॉज हम कह तो रहे हैं कि हम ठाकुर जी के लिए स्वादिष्ट भोग बना रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी जिह्वा को वो करने के लिए उसको और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? एक घटना घटी वृंदावन में, बहुत अच्छा वृंदावन मंदिर में किचन में प्रभुपाद जी ने कहा राजभोग जरा लेके आओ टेस्ट करने के लिए। देखा एकदम बढ़िया शानदार मसालेदार राजभोग बन रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा पुजारियों से, वे आज के बाद पुजारी बनाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं। तो कुछ दिनों बाद बुलाया तो देखा कि प्रसाद का स्टैंडर्ड, जो भोग का स्टैंडर्ड थोड़ा गिर गया। तो देखिए ये तो हमारा स्वभाव है। आइडियल स्टेज ये है कि हम इस तरीके से बनाएं कि कृष्ण को क्या प्रसन्न करने वाला है, आइडियली यही होना चाहिए। लेकिन हम जब बनाते हैं तो निश्चित रूप से हम भी तो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं, तो वो चीज उसमें शामिल होती है कि इसको कैसे टेस्टी बनाए। कोई नहीं टेस्टी बना, सबसे अच्छा टेस्टी से टेस्टी बनाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे भोग आरती हम लोग गाते हैं, लुची चीनी सरपुरी लाडू रसावली, तो भगवान को क्या भोग लगाया जाए और किस प्रकार से उसको बनाया जाए, ये सात्विक पद्धति से, उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आप देखें, कुक बुक वगैरह है जिसमें काफी सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें चेतना ही है कि हम यदि बनाते समय यही हमारा विचार है कि हम ये ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए बना रहे हैं, उनको कैसा लगेगा, उनको कैसे अच्छे खिलाएं, तो थोड़ा नमक ज्यादा हो जाए, तेल मसाला ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। उससे शुद्धिकरण हमारा बराबर हो, क्योंकि कॉन्शियसनेस हमारी बहुत ही प्योर है बनाते समय, कि वो बनाने के पीछे एकमात्र लक्ष्य कृष्ण के लिए बनाने का है। और धीरे धीरे देखिए भक्ति में कैसे है कि एक दिन में कुछ होने वाला नहीं, लेकिन हमें कंटिन्यूअसली उसके लिए एंडेवर करते रहना है। होता कई बार क्या है कि हम करते 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 फिर उस परिस्थिति से समझौता कर देते हैं। जैसे हम माला करते हैं तो हर दिन हमारा मन भटकता है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक भटक रहा भटकने नहीं, हमें हर दिन एक नई लड़ाई लड़नी है। नहीं आज अच्छे से जप करूंगा, अभी ये माला अच्छे से करूंगा, ये मंत्र अच्छे से बोलूंगा। तो ये करते 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 फिर एक समय आता है कि हम 60% 70% एक अच्छे तरीके से जप करने की अवस्था में पहुंच जाते हैं, अच्छे से कम से कम उतना फोकस कर पाते हैं। जैसे हर कार्य में है, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो कीर्तन हो। कीर्तन में भी ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति गा रहा है तो उसमें सिर्फ म्यूजिकल जो कहते हैं मेलो, उसको ही सिर्फ टेस्ट कर रहा है, नाम को टेस्ट नहीं कर रहा है। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि चिंता मत करिए, शुरू में एक दो बार तीन बार कोई ट्यून गाएंगे, एक आध दो महीने हो सकता है आप ज्यादा ट्यून के ऊपर फोकस करें, सारा फोकस चला जाएगा। महीने भर बाद आपका ट्यून से आपका फोकस सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के ऊपर रह जाएगा। ये भक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव है, तो उसमें कोई आप करते रहिए, और बार 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 श्रवण करने से, सुनने से, प्रयास करने से हम सही भावना के साथ ये काम कर पाएंगे। एक दिन में संभव नहीं, लेकिन हो जाएगा ऐसा। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु एक और प्रश्न है चिन्मय माता जी का, वो कह रहे हैं कि हाउ आई कन्विंस माय फैमिली एल्डर्स they don't allow me to consume onion garlic, and for the kids as well. They don't allow to consume the onion garlic. They are not, doesn't allow them to don't avoid the onion garlic in their family. Okay. How to convince them? Okay. बहुत कठिन है। ये कर सकते हैं कि बोलो भगवान को भोग लगाना है, और भगवान को भोग लगाने के लिए
तो कांदा लहसुन भोग नहीं लगता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होगा भगवान को भोग लगाने के लिए कम से कम मना नहीं करेगा। इतना उस सबको डर तो लगता है ना, प्रेम करते लेकिन डर भी लगता है कि भगवान को भोग लगाने से मना कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या हो सकता है। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि भगवान को भोग लगाने के लिए हमें बिना कांदा लहसुन के बनाना है, और फिर आप जो आप बनाते हैं वो आप खाइए, भगवान को भोग। सब्जी बेसिकली दाल चावल में कोई समस्या नहीं है, समस्या सब्जी रोटी का है, सॉरी रोटी का और चावल कोई समस्या नहीं, सब्जी और दाल का समस्या है। तो सब्जी और दाल अलग से बना के भगवान को भोग लगाने के लिए बड़ा कटोरा भर भर के भोग लगाओ और फिर आप लोग खाओ। यही कर सकते हैं अभी, यदि आप इस पोजीशन में हैं कि यू कैन डोमिनेट देम विदाउट एनी फैमिली फ्रिक्शन, क्योंकि वो भी जरूरी है। हम भक्त लोग हैं तो हमें कोई फैमिली में झगड़ा भी नहीं करना है, तो बिना फैमिली फ्रिक्शन के यदि आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं आपकी बात। कई बार होता है ना कि जैसे घर में पति हैं या सास ससुर हैं या कोई दो चार लोग अपनी पार्टी में आ जाते हैं, तो ये गेम आपको हमेशा खेलते रहना है, पार्टी बढ़ाने का, मतलब प्रचार करने का। 5 लोगों में से 3 लोग अपनी पार्टी में लेके आ गए तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, या तो 5, 10, 6 सदस्यों में से 1-2 लोगों को अपने साथ आप लेके आ सकते हैं और भगवान को भोग लगाने का तरीका अपनाइए। भगवान को बिना कांदा लहसुन का भोग लगता है, ग्रेजुअली हो सकता है आपको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़े, 4-5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, महीने भर में आप देखेंगे परिवर्तन। तो भगवान को भोग लगाना आप शुरू करिए बिना कांदा लहसुन का, बाकी सब काम कृष्णा कर देंगे। तो आप ये करना प्रारंभ कीजिए, ठाकुर जी को बिना कांदा लहसुन का भोग लगाना है। ठीक है माता जी, तो ये हो सकता है कोई मदद करेगा। माता जी मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे मंदिर आप जाते हैं ना, मंदिर में वो प्रसाद मिलता है, प्रसाद में अचार भी मिल जाता है, आप अचार ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, घर में जो अपोजिट टू भक्ति है ना, उनको आप मंदिर से अच्छा अच्छा प्रसाद खिलाइए, वो सॉफ्ट हो जाएंगे अपने आप। बिल्कुल, प्रसाद खा के उनका भी टेस्ट बदल जाएगा। एग्जैक्टली। हरे कृष्णा। तो भी एक मेरी सजेशन भी है, अगर उनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली उनको समझाया जाए तो भी वो आ जाएंगे रास्ते पे। जैसे कंजूस होते हैं ना, उनको कहना उसमें पैसा ज्यादा लगता है, या टेस्ट के हिसाब से। थैंक यू। श्यामानंद प्रभु, श्यामचंद्र प्रभु, बहुत अच्छा प्रभु, आपने बहुत अच्छा शुरू किया है। इतने सारे भक्तों को रोज दर्शन मंगल आरती से लेके और भागवत तक। दरअसल मैं खुद भी रोज नहीं आता हूँ। ये आपने एकदम, ये इन भक्तों की कृपा है कि इनकी वजह से मैं उठ पाता हूँ। मैं रात को भी काफी लेट आया, तब 12 साढ़े 12 बज गए थे, लेकिन थोड़ा सा खौफ लगा रहता है कि हमारे भक्त लोग ऑनलाइन रहते हैं, हम नहीं रहेंगे, और थोड़ा सा इसीलिए हम शर्म के कारण आते, भक्ति के कारण नहीं आते। सच्ची बात बताएं आपको, अभी इतने स्तर के भक्त नहीं है। आप आशीर्वाद करें। ई टेम्पल, एक्चुअली वास्तव में ई टेम्पल जो एक्टिविटीज मंदिर के अंदर हो रही है मंगल आरती से लेके भागवतम तक, even I will say कि in temple we don't have that much variety for Bhagavatam speaker, but here you are providing so much variety. Different speakers are coming, many Maharajas are also coming, different flavors. So the way your devotees are asking question, I can certainly say they are getting nourished by all these. क्योंकि प्रश्न पूछ रहे जो भक्त, मतलब प्रोसेस चल रही है, तो सोच रहे हैं, बढ़ने के विषय में विचार चल रहा है। Very nice to see this. I am very inspired. Thank you. These devotees are really inspiring me and keeping me in Krishna consciousness. Without devotee association, it is difficult to maintain, especially when there is no temple in your vicinity where you are living. So most of the devotee जो है यहाँ पर, वो ज्यादातर मंदिर, जैसे माताएं हैं, वो तो सुबह के टाइम पे ऐसा नहीं है बाइक गाड़ी स्टार्ट करके घर चल, परंतु इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं। और ये पूरे हमारी एक टीम है जिसमें हमारे वरुण प्रभु है और बहुत सारे हमारे डिवोटीज हैं जो हमें हेल्प करते हैं। और इट इज अ वेरी सरप्राइज दैट मेनी डिवोटीज, इवन लास्ट टाइम सर्वो प्रभु भी मुझे बता रहे थे कि ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, लेकिन पता नहीं, जब उनको ये पता चला कि अभी तक प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि जनार्दन महाराज से भी मिला, महाराज यहाँ दुबई आए थे, तो वो कह रहे थे कि आपका प्रोग्राम खत्म हो गया है, वो चल रहा है। तो मैंने बोला ठाकुर जी चला रहे हैं जब तक, तो चल रहा है। वैसे है तो बहुत डिफिकल्ट, इवन लिटरली मैं आपको बताऊं, एज अ गृहस्था वर्किंग होते हैं, जब फैमिली वगैरह होते हैं, इट इज ऑलमोस्ट 90% गृहस्थ इनिशिएटेड डिवोटीज भी नहीं कर पाते सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम, ये सब चीजें। 10% 15% कुछ है, लाइक मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में देख रहा हूँ दीक्षा लेने के बाद भी। तो जब तक आपके पास जिम्मेदारी सेवा वगैरह नहीं है या भक्तों का अच्छे संग नहीं है,
तो मिलके अगर कोई सेल्फलेस सर्विस के एटीट्यूड से अगर आप कार्य नहीं करते तो it is almost important. Then you are struggling in material life and spiritual life. So I always request devotees that between 5 to 7 try to wake up. It is not that daily you wake up. Try. जैसे कि अभी लास्ट वीक 3-4 दिन में नहीं कर पाया था, फिर मैं उठ के क्या कहते हैं अपने, और हमारे कुछ कॉन्ग्रेगेशन में बहुत ही सीनियर मतलब सिंसियर, लाइक इट इज नॉट अबाउट द सीनियर, it is about the seriousness in the bhakti. So maybe I am a senior, इनसे पहले दीक्षाएं लिए, but these devotees are more sincere than me. Like we in our congregation, Vinitra Mataji, Simi Mataji is there, and Sayantani Mataji. I cannot put the name. There are so many devotees, you know, who are coming regularly. Manisha Mataji, you know, and Ritu Mataji from USA. Bhavna Mataji is living in Dubai. So we have devotees from all over the world. But since we started, we were having 6,000 devotees. But these 50-60 devotees are not leaving us, and Krishna has sent them so we can together, you know, doing it this service. So all glories to these devotees who are complaining, but I'm not at that level. I'm also very junior to them. Hare Krishna. These are Thank most you. probably these are most sincere devotees, those who are say till 9 from 5 to 9, because I have seen temple those who come in the Mangal Aarti and staying till Bhagavatam class, the number is very rare. So I will say those who are staying in this program, some Mahatma Sudurlava, these are our Mahatmas, that they are staying this program till 9 o'clock, hearing Śrīmad-Bhāgavatam, chanting Japa. All glories to you, Prabhu. You inspired all of them. All glories to Srila Prabhupada, all glories to our devotees who are helping us, all the devotees who are coming online. So I always request, because 5 to 8, if you are able to finish your morning program, then you have a whole day to take care of your family, your business, your office and all these things. If you are not giving priority to Krishna consciousness in the morning, then your priority is the material world, and the material world is very difficult, then you will survive. So best is that finish your morning program in the morning, and the daytime you have all the things to do in the family and all these things, then Krishna will arrange everything. So this with this idea, I am also getting benefit. Otherwise it is impossible for me to wake up in the morning and chant the holy name. Especially the life in Dubai is very fast. You know, last night also I came at 12:30 or around 1. By sleeping 1:30 happened. It's all Prabhupada mercy and devotee mercy. We will not take much of your time. Dhira Shanta Krishna Prabhu. I still remember we met in Kolkata, and I want to meet you again. And please come and plan in Dubai as well. Last time also you came, but we could not able to meet. But very grateful to you, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. So we will pay our obeisance to all the Vaishnavas online and those who are not online, and not even Vaishnava, all the non-Vaishnavas. Vancha kalpatarvyasya kripasindhu Nand Koti Vaishnavindaki. Praise Dhira Shanta Prabhu ki. Jai. Jai. Jai Hare Krishna.